हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड व्हील्स। एक ऐसा चैनल जहां पे हम आपके लिए ओनर के रियल स्टोरीज़ को लेके आते हैं कि उन्होंने ये कार क्यों खरीदी, व्हाट ही लाइक्स अबाउट द कार, व्हाट ही डोंट्स लाइक अबाउट द कार, और फाइनली रैपिड फायर राउंड जहां पे वो अपने कॉम्पिटिटर्स की भी बहुत खिंचाई करते हैं। और आज हमारे साथ सोमालिया चक्रवर्ती है, हु इज़ प्राउड ओनर ऑफ टाटा एल्ट्रॉस। सोमालिया, वेलकम टू द शो। Thank you. Really pleasure hosting you. And Somalia, first thing first, जो हम आपसे जानना चाहते हैं that what you do for living, कि आपके पास टाटा एल्ट्रॉस है। So I basically शक्ल से लग ही रहा होगा, I'm a corporate मजदूर. I work in even I am a corporate मजदूर। yeah. So I'm working in a market research company here in Bangalore, and yeah, that's about it. And by chance, any chance you are also mechanical engineer? Oh yeah, by education I'm an engineer, but yeah, right now I'm working into market research. Market research, perfect. So Somalia, first thing first, जो हमारी audience आपसे जानना चाहेंगी, that what is the story behind owning this car? इसके पीछे क्या स्टोरी है कि आपने टाटा एल्ट्रॉस ली? What was your requirement? आपने क्यों ली टाटा एल्ट्रॉस? So basically when I moved to Bangalore, if you know about Bangalore, Bangalore is a well spread out city. Well spread out city. Yeah, so most of my friends used to live around 20-30 kilometers away. Plus my office itself is around 20 kilometers from my place where I live. So you need a car for commuting. Okay, two-wheelers after a point of time, you know, it becomes hectic. It takes a toll on your back. So it's मतलब मेरे को कार लेना था। एंड व्हेन ऑफिस आपका कितना दूर है, लाइक फ्रॉम होम, हाउ फार इज द ऑफिस? ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर है। राइट। सो प्राइमरली व्हाट आई अंडरस्टैंड दैट यू आर यूजिंग दिस कार फॉर गोइंग टू ऑफिस, राइट? आपका ऑफिस रिक्वायरमेंट है? ऑफिस है, यस, ऑफिस तो ऑब्वियसली है। एंड आई आल्सो go out on you know family trips almost all weekend. So weekend को Saturday Sunday I just you know go out, कोई डेस्टिनेशन नहीं डालते हम लोग, जस्ट निकल पड़ते हैं ऐसे ही, कहाँ भी मतलब आँख ले जाए kind of thing. And I have a you know 2-year-old, so yeah, so I have a 2-year-old. He also enjoys these rides. So this is basically your fun ride, जहाँ जिसको आप ऑफिस के लिए भी यूज़ करते हैं और अपने फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फेयर है ना? आई थिंक इट मेक सेंस। Yeah. So let's go to the next section, जहाँ पे सोमालिया हमें बताएंगे कि what he really loves about the car. So सोमालिया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि हर कोई का एक कार में एक फेवरेट चीज़ होता है, थिंग विच यू रियली लव अबाउट द कार, ठीक है? तो आप जब टेस्ट ड्राइव लेने भी गए होंगे, तो व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो which made you fall in love with this car? Which is one thing which you really love about this car? Yeah, I know you must be expecting the answer that I will be talking about the safety. Yes, of course, this has the 5-star rating. NCAP 515. Yes. Yeah. So it is one of the safest hatchbacks out there. That is definitely one of the most important things that helped me to decide whether to buy this car or not. But that is not my most favorite thing. I'll be honest with you. उसके अलावा भी कोई चीज़ है? Yes, definitely. जहाँ तक मुझे पता है कि टाटा एल्ट्रॉस का सबसे बड़ा जो USP है वो उसकी सेफ्टी रेटिंग है, क्योंकि हैचबैक सेगमेंट में बस एक टाटा एल्ट्रॉस ही ऐसी है जो 515 स्कोर कर पा रही है। बाकी बलिनो का हाल आपको पता ही है। i20 also struggles to score 3 out of 5. So और क्या, जैसे आप क्या बताना चाह रहे हैं हमारे? तो हाँ, जैसे आपने बोला कि सेफ्टी ऑब्वियसली इज इम्पोर्टेंट। इस पे बैठता हूँ तो हमेशा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अंदर हूँ तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को। बट द बेस्ट थिंग इज नॉट दैट, एटलीस्ट फॉर मी। द मोमेंट यू प्रेस द स्टार्ट engine button, the noise it makes, okay, it's almost like a jet engine powering up. So rush आपको देता होगा। Yes, definitely, and that is for me that is the best thing about this car. That so I think ये फर्स्ट टाइम मैं किसी टाटा एल्ट्रॉस के ओनर से सुन रहा हूँ। आई थिंक सोमालिया हमारे साथ है, और what he is pointing out towards is कि जब ये कार को ये स्टार्ट करते हैं और जो NVH लेवल इस कार का लोग हाई बताते हैं, बट इनके लिए ऐसा केस नहीं है। जब ये कार के इंजन कॉकपिट को स्टार्ट करते हैं और वो उनको जो एक नॉइस आता है कार से, तो उनको एक वो क्लासिक 350 के कस्टमर जिस चीज को फील करते हैं, exactly. तो बुलेट वाला कभी नहीं बोलेगा कि बाइक के, आप किसी भी बुलेट के कस्टमर से पूछ लीजिए, ही रियली एंजॉयज, मतलब वो जो बुलेट का साउंड है उनको उसी से एक एड्रेनलिन रश आता है। सो व्हाट सोमालिया इज पॉइंटिंग आउट कि इनको उनसे काफी एक एड्रेनलिन रश आता है, उनको एक फील आता है कि वो एक कुछ एक
जेट इंजन को ड्राइव कर रहे हैं, एंड लाइक ही इज टिपिकल मैकेनिकल इंजीनियर, एंड मैकेनिकल इंजीनियर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर ही इज पॉइंटिंग आउट टू थिंग्स. एक सेफ्टी रेटिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं. ही रियली लाइक्स द सेफ्टी रेटिंग, एंड सेकंड थिंग इज हाईलाइटिंग टुवर्ड्स हिज envious level of the car, which is a kind of a negative, but it is acting as a positive thing for him. So that is two things which he really loves about the car. And next thing we'll be talking about that what he really don't likes about the car. So let's go to the next section. सो सोमालिया, आई थिंक आपने हमें बताया कि आपको इस कार के बारे में क्या अच्छा लगता है, व्हाट यू लव अबाउट दिस कार. बट वन थिंग जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कार में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं पसंद है, क्योंकि हर कार के बारे कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, राइट? सो इस कार में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको नहीं अच्छी लगती है, विच यू डोंट लाइक अबाउट दिस कार? Two things. सबसे पहले तो again because of the safety rating, Tata had to make a little compromise, making it heavier, and making it heavier means it gives a little less mileage. So that is one thing I would point out. जब आप लेस माइलेज बोल रहे हैं, सो आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अगर ये सिटी और हाईवे में आपको कितना माइलेज दे रही है? सिटी में around 8. And this is with AC on or without Yeah, AC? with AC, on with आपको AC, 8 दे रही है. In city heavy traffic, mild traffic, कैसा ट्रैफिक रहता है? हाँ, मतलब बैंगलोर में आपको माइल्ड ट्रैफिक या लाइट ट्रैफिक का तो ऑप्शन मिलता नहीं. इट्स ऑलवेज हेवी, इट्स ऑलवेज हेवी ट्रैफिक. सो या इन दैट आई गेट माइलेज ऑफ अराउंड 8, नॉट मोर देन दैट. आई वुड से हाईवे कितना मिलता है? जैसे हाईवे अराउंड 10 to 12 with AC. 10 to 12 yeah, something like that. Yeah. So I think fair enough. आप जो पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर आप कंसिडर करते हैं एक हैचबैक को विच इज़ 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन, उसके हिसाब से माइलेज ये थोड़ा तो कम है. मतलब अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे 2 लीटर के इंजन से, जैसे अगर आप देखेंगे XUV 700 देखेंगे, 2 लीटर इंजन से 6-7 का माइलेज एक XUV 700 जैसी कार निकाल रही है. तो अगर उस पॉइंट को मैं तो देखूँ तो आई एग्री विथ यू, और आई थिंक मेरे कस्टमर भी मुझसे एग्री करेंगे. इनफैक्ट आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके पास भी टाटा एल्ट्रॉस है तो आप लोगों को कितना माइलेज ये दे रही है, क्योंकि शायद आपको ये बेटर माइलेज दे रहा हूँ, बट जैसा सोमालिया बता रहे हैं कि इनको ये इतना ही माइलेज दे रही है. And the second point is that service. So I mean Tata service, it has improved. I would say it has improved from I have been owning this car for almost 3 years. तो 3 साल में इसका सर्विस का इम्प्रूवमेंट आया है, बट स्टिल अभी भी इट इज नॉट एज गुड एज Hyundai or Maruti. तो सर्विस में there are issues. It's many a times it is time taking, parts आने में डिले होता है, और so overall service experience में there can be a lot of improvement for Tata. Yeah. तो what सोमालिया हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो टाटा एल्ट्रॉस है इसका सर्विस एक्सपीरियंस जो है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छा नहीं है. और मैं भी क्योंकि एक Hyundai ओनर हूँ तो मैं इनसे अग्री करूंगा, क्योंकि आप Hyundai में जो आप सर्विस का एक्सपीरियंस है वो बहुत टॉप नॉच है. बट टाटा के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पे टाटा को अभी भी काफ़ी काम करना है. क्योंकि व्हाट सीम्स राइट नाउ इज़ कि टाटा अभी भी वो ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर के साइकोलॉजी से नहीं निकली है, जहाँ पे एक प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस वो सर्विस क्वालिटी के मामले में दे पाएँ. तो जैसा कि हम सोमालिया से समझ पा रहे हैं, 2 चीज़ को ये हाईलाइट कर रहे हैं प्राइमरीली. एक तो माइलेज, इस कार की माइलेज काफ़ी पुअर है, काफ़ी पुअर या हाँ पुअर है कंसिडरिंग इस 1.2 लीटर इंजन एंड 3 सिलेंडर. एंड सेकेंड चीज़ व्हाट सोमालिया इज़ हाईलाइटिंग टुवर्ड्स इज़ कि इस कार का सर्विस कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है. तो अगर आप इस कार को लेने का सोच रहे हैं तो इस 2 पॉइंट को आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक अ परचेज. नाउ नेक्स्ट राउंड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग राउंड, जहाँ पे हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, और वहाँ पे सोमालिया अपने कॉम्पिटिटर्स की भी बहुत खिंचाई करने वाले हैं, जहाँ पे वो बलिनो और i20 जैसे कारों की भी बहुत खिंचाई करेंगे. सो लेट्स गो टू द रैपिड फायर. So Somalia, welcome to the rapid fire round. And first question first, how many kilometers have you driven? It has been almost 3 years, almost 30,000 kilometers. 30,000 kilometers in 3 years. That's a pretty large number. Yeah. Second question, what is the mileage you are getting in city and what is the mileage you are getting in highway? In city with AC in traffic around 8 kilometers, not more than that. And in highway around 10 to 12. 10 to 12. Yeah. Fair enough. और सोमालिया, एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स भी आपसे जानना चाहेंगे कि दैट व्हाट इज़ द ओनरशिप कॉस्ट ऑफ दिस कार. ओनरशिप कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसका सर्विस कॉस्ट कितना है, इसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, इसका इंश्योरेंस कॉस्ट, तो टोटल एनुअली कॉस्ट इसका क्या आ रहा है?
I would say somewhere between 1.5 to 1.8 lakhs. 1.5 to 1.8 lakhs. हाँ, अगर इसका क्योंकि फ्यूल पे ही ऑलमोस्ट 10 to 12,000 पर मंथ चला आता है, प्लस इंश्योरेंस है, पोल्यूशन से, ऑल द सर्टिफिकेट्स, प्लस आपका कुछ भी डैमेज होता है उसका भी अगर सब कुछ ले लिया, प्लस मेंटेनेंस, रेगुलर साफ सफाई एंड एवरीथिंग, या अराउंड। तो मोटा मोटी हम 2 लाख मान के चले एनुअल जाता है। हाँ, मतलब 2 लाख तक नहीं, आई वुड से, बट एटलीस्ट 1.5 to 1.8। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल आवर व्यूअर्स कि अगर आप टाटा एल्ट्रॉस खरीदने का सोच रहे हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑन रोड प्राइस जो आप इस कार का पे करते हैं, इसमें बहुत सारे कॉस्ट ऐड हो जाते हैं आपके मंथली बेसिस पे। आपका फ्यूल कॉस्ट ऐड हो जाएगा, आपका सर्विस कॉस्ट ऐड हो जाएगा, आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो आपके रिपेयर्स कॉस्ट होते हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप एल्ट्रॉस खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एनुअली आपको 1.8 से 2 लाख रुपीज़ इसके मेंटेनेंस में खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप जब भी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपये एनुअल खर्च कर सकते हैं अलग से अपने कार के मेंटेनेंस पे, तो ही आप ये कार लीजिए, नहीं तो आई थिंक यू शुड अवॉइड दिस कार। सो सुमाइला, नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट अगर मैं आपको एक सुपर पावर देता हूँ और आपको बलिनो से एक फीचर स्टिल करने का मौका मिलता है, मतलब आप बलिनो से एक फीचर चोरी कर सकते हैं, तो एक ऐसा क्या फीचर है जो आप बलिनो से चोरी करके एल्ट्रॉस के अंदर लाना चाहेंगे? आई थिंक द लाफ इज स्टिल सेइंग कि मतलब वो बलिनो से क्या चोरी करना चाहेंगे? बलिनो, हाँ, बलिनो इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग हैचबैक। The main reason I guess is the mileage, and अगर हाँ some of that mileage if I can get in my Tata Altroz, why not? सो सुमाइला बोल रहे हैं कि वो बलिनो का माइलेज चुराना चाहेंगे, तो क्या बिल्ड क्वालिटी भी उसके साथ? No, build quality I want no compromise on the build quality. बलिनो का बिल्ड क्वालिटी आप सबको पता है, इट्स एनकैप ऑलमोस्ट 0, तो बिल्ड क्वालिटी सुमाइला बोल रहे हैं वो नहीं चोरी करना चाहेंगे, बट हाँ माइलेज चोरी करना चाहेंगे। और सुमाइला, अगर i20 के बारे में बात करूँ, i20 इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी स्मार्ट लुकिंग कार, तो i20 से आप क्या चोरी करना? स्मार्टनेस में, टू बी ऑनेस्ट, अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, आई फील this is the most sleek design than i20. Right. Yeah. One thing I would like to borrow from i20 is this power, its acceleration, and I guess the reason is क्योंकि it is a 4-cylinder engine, then Altroz comes with a 3-cylinder engine, so that gives it a better acceleration. So one thing if I could steal from i20 is that part. फेयर इनफ। और अगर सुमाइला, जो मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं 2 क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा, ठीक है? Okay. अगर मैं आपको एक सॉन्ग देता हूँ, एक सॉन्ग जो आपके कार को डिफाइन करता है या आप इसमें बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, सो व्हाट इज़ दैट वन सॉन्ग विच रेजोनेट्स विद योर कार, जो आप बहुत ज़्यादा सुनते हो और आपके कार को वो डिफाइन भी करता है? व्हाट इज़ दैट वन सॉन्ग? जो सबसे ज्यादा सुनता हूँ मैं इस कार में, दैट इज द शिव तांडव स्तोत्रम फ्रॉम बाय शंकर महादेवन। हाँ, तो उस गाने का जो वो ये आपके कार को क्यों रेजोनेट करता है ये गाना? हाँ, सो उसका जो द टेम्पो है, जो उसका जो उस गाने की जो गर्जन है ना, दैट रेजोनेट्स विद दिस कार द मोस्ट। पावर, द मैस्कुलिनिटी, एग्जैक्टली द पावर दैट सॉन्ग हैज, दैट रेजोनेट्स विद Altroz द मोस्ट। ओके, ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन, इफ गिवन अ टाइम मशीन, अगर मैं आपको एक टाइम मशीन देता हूँ और वापस से आप 3 साल पहले जा सकते हैं जब आपने ये कार लिया था, तो क्या आप वापस से टाटा एल्ट्रॉस खरीदेंगे या फिर किसी और कार को खरीदेंगे? थोड़ा सा और आई वुड से कि फंड इकट्ठा करके आई वुड गो फॉर अ टाटा हैरियर और टाटा सफारी। एंड व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट I go on long drives with my family. I have a 2-year-old, and उस पे long drive पे no doubt Altroz is very comfortable. Even for longer drive, I have driven this car to Mahabalipuram from Bangalore and to other places as well. So but when looking at higher power car like a Harrier or a Safari, that would be my choice. ग्रेट, क्योंकि मतलब एक फुल एसयूवी की एक बात ही अलग है, मतलब उसके साथ पावर आती है, जो उसके साथ एक ड्राइव एक्सपीरियंस आता है, वो आई थिंक अनमैचेबल है. सो फेयर एनफ. तो सोमालिया बोल रहे हैं कि अगर उनको एक सेकंड चांस मिलेगा तो Altroz इज अ ग्रेट कार, नो डाउट अबाउट इट, ही लव्स इट, और इनके बात से ही पता चल रहा है कि ही इज रियली हैप्पी ओनिंग दिस कार. बट अगर उनको एक सेकंड चांस मिलेगा तो टाटा हैरियर को जरूर कंसिडर करना चाहेंगे, कंसिडरिंग इट्स फुल एसयूवी और उसके साथ जो एक ड्राइव एक्सपीरियंस है वो और भी काफ़ी बेटर और काफ़ी प्रीमियम रहेगा. एंड लास्टली सोमालिया, अगर मैं आपके कार को रेट करने बोलूँगा ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो आप कितना रेट करेंगे अपने कार को ऑन अ स्केल ऑफ 10?
I would rate it an 8.5. और ये 1.5 का जुर्माना आपके कार पे क्यों लगा है, क्यों आपने 1.5 डिडक्ट कर दिया अपने कार का? तो ये बचपन में जैसे हमारे भी मतलब हमके कभी फुल मार्क्स नहीं दिया जाता था, हमेशा कुछ ना कुछ काट लिया जाता था. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. Okay, even for Altroz, I believe there's a lot of room for improvement. Tata has already come out with an updated version of this car, and yeah, so I guess that is why I would give it an 8.5. Otherwise, Tata is listening to you. There is a scope for improvement, and Somalia has just rated 8.5 out of 10. I think with this we have come to the end of the episode. आपको भी लगता है कि आपके पास कोई कार है और उसकी ओनरशिप स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, दैट डू कमेंट बिलो. अगर आपके पास Altroz भी है तो आपको कितना माइलेज मिल रहा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, हमारे साथ शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आप लोगों के कारण ही आज हम यहाँ पर हैं. एंड सबा खैर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.